Let's start with our today's lecture. Do you hear me? क्या आवाज आ रही है आप लोगों को? Hello. For today's topic is critical path method. Finding the critical path. बेटे वेट करें बाकी लोगों का, या मैं स्टार्ट कर दूं? अच्छा 25 लोग होंगे बस, ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, if you just have a look at this given example, there is some situation written here. If you follow my cursor about this critical path method, there is some situation written here. For instance, this situation says that, for example, you have to go on a hunting trip, and you have three friends who decide that one friend will get the food. So out of three, you decide that one will go to get the food, the other one will go to get the hunting gear. Hunting gear means all the equipment you need for hunting. And the third one, that is you decide to prepare the jeep or the vehicle to go on that trip. Right, so it says that, for instance, the first activity, the first person, the first friend who has to bring the food, he needs 2 hours. If you keep following my cursor, the example says that the first friend requires 2 hours to bring the food. The second one, the second activity, getting the hunting gear, requires 3 hours. Means the second friend will take 3 hours to bring the hunting gear. And the third one has to bring the jeep, will require 4 hours. So in case if I ask you, out of these three activities, which one you find the most critical one, or which one you find that without that activity you cannot execute this whole trip, which activity do you find that sort of critical activity? Any idea? So three activities are there. Last one is jeep riding. Very right, very true. So you know that looking at these three activities, you find that without jeep you cannot travel to that trip. All right, so here you find this fourth activity as the critical one, with which you cannot execute your trip. So let's see, this situation is explained here. For instance, it says, for instance, it says that, for example, you start all your activities at 8 a.m. in the morning. So first friend will take 2 hours and will finish at 10 a.m. The second friend who has to bring the hunting gear will take 3 hours, will finish at 11 a.m. And the third one, which is you will take 4 hours, and by 12 p.m. you will finish, or you will be ready to go ahead. Now here, if you just look at these timings, do you understand that, for example, this first guy who has to bring the food, and he'll be ending or finishing his activity by 10 a.m. after 2 hours, do you think that has he got any margin to get delay to execute his activity? Do you think so? Has he got any margin? If he gets late, can you afford on this trip? If this guy who has to bring the food in 2 hours, and he'll be ready, if he goes by plan, he is ready by 10 a.m. But in any case, if he gets late, do you think your whole trip will disrupt? 2 hours. So that's it. That's the point. So this guy who has to bring the food may afford a delay, or may get late for 2 hours. Similarly, the second guy who has to bring the hunting gear will be ready by 11 a.m. For how long he can afford a delay? For 1 hour. All right. But this guy who has to bring the jeep or vehicle by 12 p.m., he has no time available to get delay or to be late. In case if this guy who has to bring this jeep
if he gets late, what do you think? What will happen to the whole trip? ये हो जाएगी हमारी। Your trip will be delayed. So your whole trip, your whole plan will be late if this third guy who has to be ready by 12 p.m. will be late. So now this in this picture, this thing is explained. So first activity will end in 2 hours at 10 a.m. and this shadowed part here, the one is the solid half and one is the shadowed half. So for this shadowed half, this guy may get late. He has got this much margin, he has got these many hours to get late. Similarly, for second guy, he has got this much, this shaded part is the margin he may get late. But for third guy, there is no such margin. So this shaded part, if you just follow my cursor, this shaded part for which one guy or one activity may get late or may be delayed is called the float time. So this activity of getting the food has got 2 hours as its float time. All right. Similarly here, this shaded part is basically float time for this second activity of getting hunting gear. And there is this third activity who has got no float time. So the activity which has got no float time is called critical activity. Are you getting my point? So this third activity which has got no float time is called the critical activity. So now we'll replicate the same example to the construction industry. In construction industry, you have got number of activities. So there would be many activities which has got some float time, like here, this shaded part. So there will be many activities who has got some float time, means they have the margin of getting late, and that still won't affect your project completion plan. But in case some activity which is critical one, like this third activity, some activity which has got no float time, which is a critical activity, if that activity gets delayed, that simply means your whole project completion plan will be at risk and will be late. So now this looking at this situation, we have got this critical path method, which is basically a method to identify those activities which has got no float time. Means we want to find out of whole project activities that which are the most critical activities where we can't afford any delay, so that while executing the project we remain conscious about the execution of those particular activities to avoid any delay in our completion date. Are you following my point here? Any questions up to here? So if you are clear about it, about this idea of float time, let's start with our numerical or question today. So please bring your notebooks and let me start with this numerical. And if you have got any questions, please to ask now about this float time and critical activities. All right. So koi bol nahi raha, so that means I suppose that there is no question. All right, so please keep your notebooks with you. And I request you all to note down this example. You only note down this activity title column. No need to note down this description. That will be with you with this lecture notes. But note down these predecessors and duration of activities in weeks. Please note down these three columns: activity title, predecessor, and duration column. And then I request you all to draw a node network diagram for this network. Are you getting what I'm saying? Note down in your notebooks these three columns: activity title, predecessor, and duration, and then draw the node network diagram for this network.
दुल्ला बेटे नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? Please do reply so I must know that you are with me. फिर जवाब दे दिया करें. हाँ जी अब्दुल हसीब, रीमा, रफीक. यस मैम कर रहे हैं. Okay. Priya Nisar, are you with me? Yes, ma'am. Laiba, आप? Laiba, are you there? Shamsul Rahman, are you there? Yes ma'am. Zunaira, are you there? बेटा ये क्या लगा के चले गए हो कि जो लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे आई फोर्स यू आउट ऑफ दिस मीटिंग. मैं आपको इसमें से निकाल दूंगी इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड मी. Zunaira or Laiba, are you there? Yes, ma'am. All right, that's fine. Thank you. बेटे ये जरा क्विकली करें. आज हमने ये 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं इस मेथड के, ये आज कंप्लीट करना है. नोड नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करें इसकी. Excuse me मैम ये स्लाइड ये गेट फूड और गेट हिटिंग मतलब हंटिंग वाले बार शेड्यूल बार चार्ट में सॉरी स्टक है मुझे वो एक्टिविटी से उसके नाम नहीं नजर आ रहे. मतलब ये नेक्स्ट स्लाइड नहीं आई है. अच्छा ओके ओके सॉरी तो फिर आप इतनी देर से बताएं तो सही क्या कर रहे हैं. हाँ जी आप आगे ये स्लाइड जो नजर आ रही है इसमें एक्टिविटी टाइटल ये कॉलम नोट करना है, प्रीडिसेसर का करना है और ड्यूरेशन का. मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पहले आप लोग नोट डाउन क्या कर रहे थे. मैं हम समझ रहे थे पता नहीं हमारे नेट का प्रॉब्लम इसलिए देर से आ रही स्क्रीन. ओके सॉरी अबाउट द इनकन्वीनियंस. अच्छा इसमें ये डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम रहने दें. ये टाइम लेगा बस. आप एक्टिविटी टाइटल प्रीडिसेसर एंड ड्यूरेशन इसको नोट करें एंड देन ड्रॉ द नोड नेटवर्क डायग्राम.
हाँ जी, आप लोगों ने ये नोड नेटवर्क डायग्राम बना ली है। ये कुछ इस तरह से बनाएं प्लीज। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि ये दोबारा आपको ड्रॉ ना करनी पड़े। Draw this node network diagram with these boxes of a larger size. आप बेहतर है कि अपनी नोटबुक पे थोड़ा या तो उसमें लैंडस्केप में कर लें इसको। सो उस व्यू में ये आपकी थोड़ी बड़ी बन जाएगी। बॉक्सेस मुझे थोड़े लार्ज साइज के चाहिए। इफ यू जस्ट लुक एट दीज बॉक्सेस, क्योंकि इनके अंदर मुझे ऑलमोस्ट 6-7 नंबर्स हैं जो लिखने हैं, ठीक है। तो ये लार्ज साइज के बॉक्सेस आपने बनाने हैं और ये सेंटर में ये जो इस कॉलम के अंदर एक्टिविटी टाइटल आपको दिया हुआ ना एग्जाम्पल में, तो ये इसके सेंटर में ये एट दी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, योर लेफ्ट साइड आपने ये एक्टिविटी टाइटल लिखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नोड नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करनी है और जो एक्टिविटी टाइटल है 1 2 3 जो भी एक्टिविटीज हैं, ये आपने ऑलमोस्ट इन मिडल ऑफ योर बॉक्स लिखना है टुवर्ड्स द लेफ्ट। और ये बीच में भी, यहाँ पर भी मैंने एक नंबर लिखना है और एक नंबर राइट की तरफ भी लिखना है, इसलिए ये थोड़ा सा लार्ज साइज का बॉक्स बनाइएगा। ये एग्जाम्पल नोट कर लिया है तो मैंने स्लाइड पे कर। बेटे अगर एग्जाम्पल आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ही शेयर कर देती हूँ। वो आप नोड नेटवर्क डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम आप ना लगाइएगा, ये देख के ही बस बना लें। इसको नोट डाउन पहले कर लें बस आप सारी एग्जाम्पल। हाँ जी, एग्जाम्पल नोट कर ली है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। यस मैम, हो गई है। चलें, अब ये नोड नेटवर्क डायग्राम की, और जैसे मैंने बताया है नियरली मिडल में आपने एक्टिविटी के टाइटल्स लिखने हैं। ये 1 2 3 4 जो है ये एक्टिविटी टाइटल्स हैं। लार्ज साइज का बॉक्स बनाइए एंड देन ड्रॉ दिस नोड नेटवर्क डायग्राम। बाकी का क्वेश्चन बताती हूँ आपको।
बेटे ये नोड नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट स्टेप पे चलूं मैं? बेटे नोड नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ हो गया आप सब लोगों की? एक्टिविटीज के टाइटल्स भी लिख लिए हैं इस डायग्राम में। मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ। ये अब आपको इसी बॉक्स में जहां पर ये फॉलो माय कर्सर प्लीज, where you have written the activity title as 1 on the right side of this same line, nearly in the center of this box. This 2 week is the duration for this activity. So for activity 1, duration of its execution is 2 weeks. So on right side towards the right, I have written all the duration of all the activities. तो ये भी kindly लिख लीजिए. From activity 1 till activity 14. हाँ जी क्लास बेटे, आप लोग लिख रहे हो ये एक्टिविटी टाइटल्स एंड ड्यूरेशंस? यस मैम, ऑलराइट लिख लिए। सारे हो गया? ओके, दैट्स फाइन। अच्छा जी, अब हम ये क्रिटिकल पाथ मेथड करेंगे। बेसिकली एज आई टोल्ड यू अर्लियर, this method applying this method will identify those activities which are critical for the execution of this project, means those activity which have got no float time. अब उसके लिए करना क्या होगा? बेसिकली हमें इन सारी एक्टिविटीज का फ्लोट टाइम पहले तो निकालना है। तो जब फ्लोट टाइम निकल आएगा तो हम देख लेंगे कि जिन एक्टिविटीज का फ्लोट टाइम, कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटी का फ्लोट टाइम क्या होना चाहिए? एनी आइडिया? अभी पिछली जो हमने एग्जांपल ली वो जो ट्रिप वाली थी उसमें जीरो क्रिटिकल के लिए जीरो वेल डन दैट्स इट। तो जो एक्टिविटीज का आपके पास फ्लो टाइम 0 आएगा वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी। तो हमने इस सारे नेटवर्क में ये जो गिवन अभी नेटवर्क एक हमें नजर आ रहा है, ये कंस्ट्रक्शन जॉब का मतलब एक नेटवर्क हमने ड्रॉ कर लिया डिपेंडिंग अपॉन दी गिवन लॉजिक। मतलब लॉजिक हमें क्वेश्चन में उसने दे दिया है। ऑल्दो बीइंग प्लानिंग इंजीनियर, ये लॉजिक्स भी हमने खुद ही निकालनी होती है, मतलब खुद आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी प्रीडिसेसर्स हैं, कौन सी डिपेंडेंट हैं, कौन सी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं, या किससे पहले कौन सी एक्टिविटी होगी तो फिर अगली आएगी। ठीक है, तो उस लॉजिक्स की बिना पर हमने एक ये सीक्वेंशियल एक्टिविटीज का नेटवर्क ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इस नेटवर्क में वी हैव रिटन द एक्टिविटी टाइटल्स एंड एक्टिविटी ड्यूरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर कैलकुलेशन. The first process which we will be applying on this network is called the forward pass method. All right, अब forward pass में क्या है? We will be starting with activity 1, 2 and 3. मतलब जो भी starting आपकी activities हैं, we will be starting from these activities. If we just look at this network,
अब ये जो स्टार्टिंग एक्टिविटीज हैं 1, 2 और 3, इन तीनों एक्टिविटीज से पहले कोई प्रीडिसेसर नहीं है. व्हाट डज इट मीन? ये कौन सी फिर एक्टिविटीज हैं जिन एक्टिविटीज के पहले हमारे पास कोई प्रीडिसेसर नहीं है? दैट मीन्स दीज एक्टिविटीज आर आवर स्टार्टिंग एक्टिविटीज. ऐसे ही है ना, मतलब प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो रहा है तो ये तीनों एक्टिविटीज से हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है. यही मतलब हो गया ना इसका. ऑलराइट, सो व्हाट डज इट मीन? इन तीनों एक्टिविटीज का स्टार्ट टाइम फिर क्या होना चाहिए? Their start time is basically the startup of project, means they will be starting at 0 time. समझ रहे हो इस चीज को? ये activity 1, 2, 3, all these 3 activities are considered to be project startup activities. और हमें पता कैसे चला कि इन activities से पहले कोई predecessor नहीं है? That means all of these 3 will be project startup activities, and therefore जैसे ही आप इन activities पे काम start करेंगे means you are starting work on the project. तो ये 0 timeline of the project से start हो रही हैं. Are you getting this 0? ये जो रेड में अब आपको नंबर नजर आ रहा है, Are you getting this 0? कि ये 0 कैसे आया है? एक्टिविटी 1, 3 के टॉप पर जो मैंने 0 लिखा है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट की टाइमलाइन का स्टार्टअप है. सो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग एट 0 टाइम. ठीक है. सो नाउ लुकिंग एट दिस लॉजिक, अब हमें पता चल गया कि ये 3 एक्टिविटीज हमारी 0 टाइम से स्टार्ट हो रही हैं. तो फॉर इंस्टेंस इफ यू जस्ट लुक एट एक्टिविटी 1, तो एक्टिविटी 1 का कंप्लीशन कब होना चाहिए? If you just look at its duration, it has got 2 weeks. 2 weeks इसका execution time है. So what does it mean? When the project will be 2 weeks old, then this activity 1 will be finished. ऐसे ही है. तो इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी स्टार्ट 0 टाइम से हो रही है, और अगर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के लिहाज से मैं देखूं तो ये 2 वीक्स में एंड हो रही है. Is it? Are you getting this 2 in red? Bete, about activity 1, are you clear about this number 2 in red? पहले वाला ये जो ब्लैक में नंबर 2 है, ये इसका ड्यूरेशन था. ये तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया था ना, ये तो हमने कैलकुलेट नहीं ना किया. ये जो ब्लैक में नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये सारा गिवन डाटा था. दिस वाज द इनपुट डेटा. जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं वो सारे एक्टिविटी टाइटल्स हैं, और जो राइट साइड के सेंटर में ये ब्लैक में नंबर्स हैं, ये सारे एक्टिविटीज के ड्यूरेशन हैं. तो अगर एक्टिविटी 1 को हम देखें, और अब हमने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन ड्रॉ करनी है ना बेसिकली, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, तो हमने एक पूरी टाइमलाइन को फॉर इंस्टेंस उसने पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रॉ किया बार चार्ट्स की सूरत में, तो हमें पता चल गया कि किस एक्टिविटी के पास कितना फ्लो टाइम है. तो अब बेसिकली हमने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन ड्रॉ करनी है, और इस टाइमलाइन के अंदर हम देखेंगे इवेंचुअली हम कैलकुलेट करेंगे फ्लो टाइम्स. ठीक है. सो अब एक्टिविटी 1 की स्टार्टअप टाइम 0 है, और इसका फिनिश टाइम जो है एक्टिविटी 1 का, दैट इज 2 वीक्स, क्योंकि इसका ड्यूरेशन आपको 2 वीक्स दिया. तो 2 वीक्स प्रोजेक्ट की जब गुजरेंगे तो ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी. सिमिलरली फॉर एक्टिविटी 2, स्टार्टअप टाइम इज 0, एंड आप इसका ड्यूरेशन जो है 13 वीक्स वो 0 में ऐड करें. सो 0 + 13, आपके पास 13 वीक्स आ गए. तो ये इसका एंड टाइम हो गया. ठीक हो गया. इसी तरह एक्टिविटी 3 का 0 स्टार्टअप टाइम, और इसमें इसका ड्यूरेशन ऐड किया तो 6 वीक्स इज इट्स फिनिश टाइम. तो ये एक्टिविटी 1, 2 और 3, इनके ये जो रेड में नंबर्स हैं, आर यू क्लियर अबाउट दीज 2 नंबर्स? हर एक्टिविटी के ऊपर जो 2-2 नंबर्स लिखे हैं. एनी क्वेश्चन सो फार? बेटे एक्टिविटी 1, 2 और 3 में दोबारा फिर रिपीट नहीं करूंगी. अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लीज टू आस्क नाउ. आपने सिंपली उसका जो स्टार्टअप टाइम है जो 0 है, 0 से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसमें उनके एक्टिविटीज के ड्यूरेशन ऐड किए, तो उन एक्टिविटीज का फिनिश टाइम आपके पास आ गया. दैट्स इट. और ये नंबर कुछ नहीं है. ठीक है बेटे, आगे से रिस्पॉन्ड किया करें. यस ठीक है. यस मैम. किसी का भी क्वेश्चन हो तो उसी टाइम पूछें, फिर इसमें हम आगे चलते जाएंगे. तो वो फिर मिस जो करेंगे तो वो आपका ही मिस रह जाएगा. अगर करते जाएंगे तो अभी ये क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा. ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये लॉजिक को सिर्फ अंडरस्टैंड करते जाएंगे तो यू विल लर्न दिस बाय हार्ट इवन नाउ. ठीक है. अच्छा, अब आगे देखें.
now looking at the sequence, we have got 1 2 3 and then comes the activity 4. ठीक है, सीक्वेंस में हमारे पास इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक्टिविटी 4 आ गई इसके बाद. ठीक है, अच्छा अब प्रोजेक्ट की एक्टिविटी 4 जो है, इफ यू जस्ट लुक एट इट्स IPA, इमीडिएटली प्रीसीडिंग एक्टिविटी, वो एक्टिविटी 1 है. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि एक्टिविटी 4 कब स्टार्ट होगी? जब एक्टिविटी 1 फिनिश होगी. तो फिर एक्टिविटी 4 का स्टार्टअप टाइम क्या होना चाहिए? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? एक्टिविटी 4 का इस प्रोजेक्ट 2 वीक्स, आफ्टर 2 weeks, ma'am. डेफिनेटली. सो यहाँ पर एक्टिविटी 2 की एक्टिविटी 4 के टॉप पर ये जो 4 टाइटल है इसके टॉप पर आप 2 वीक्स लिखिए, और एक्टिविटी 4 का कंप्लीशन टाइम क्या होना चाहिए फिर? मैम 12 weeks. वेल डन, यही है जी. ये अब आप अपने पास भी नोट करते जाए, नेक्स्ट नंबर्स आपने खुद मुझे कैलकुलेट करके देने हैं. ये आ गया जी एक्टिविटी 4 का 2 and 12 नंबर्स, ये दोनों आ गए. ठीक है, अच्छा जी अब मैं एक एक्टिविटी आपको बताती हूँ और फिर रेस्ट यू विल बी डूइंग योरसेल्फ. अब एक्टिविटी 5 पे अगर मैं आ जाऊँ, तो एक्टिविटी 5 को इससे पहले 2 एक्टिविटीज हैं विच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर यू कुड स्टार्ट एक्टिविटी 5. वो है एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 4. तो लॉजिक ये कह रही है इस गिवन क्वेश्चन की कि जब तक एक्टिविटी 2 और 4 दोनों कंप्लीट नहीं होती, यू कैन नॉट स्टार्ट विद एक्टिविटी 5. तो इसका क्या मतलब है कि एक्टिविटी 5 को किस टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए? 25. फिर सोच के बताएं बेटे, एक्टिविटी 5 को किस 13. ओके ओके, वेल डन. सो अब ये यहाँ पर इसको 13 वीक पे स्टार्ट होना चाहिए. अब इसकी मैं लॉजिक आपको बता देती हूँ, रीजन क्या है. एक्टिविटी 5 से पहले 4 और 2 इन दोनों एक्टिविटीज को कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन एक्टिविटी 2 को कंप्लीट होने के लिए 13 वीक्स का ड्यूरेशन चाहिए, और एक्टिविटी 4 को कंप्लीट होने के लिए आफ्टर 12 वीक्स ऑफ द प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो जाएगी. इसका क्या मतलब है कि एक्टिविटी 4 जब 12 वीक्स के बाद कंप्लीट हो जाएगी, तो स्टिल जो है एक्टिविटी 2 अभी चल रही होगी, उसको मजीद 1 वीक चाहिए, तो वो अपना 1 वीक मजीद लेगी. और एक्टिविटी 5 की लॉजिक ये है कि वो तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक 2 और 4 दोनों कंप्लीट नहीं हो जाए. तो इसका मतलब है कि जब 13 वीक्स गुजर जाएंगे, तो फिर एक्टिविटी 4 तो ऑलरेडी हमारी 12 वीक्स पर खत्म हो चुकी है, तो एक्टिविटी 2 जो है तब हमारी खत्म हो जाएगी. तो आफ्टर फिनिशिंग एक्टिविटी 2 and 4 both will be starting activity 5. That means if you start activity 5 at 13 week, that means it's already its predecessor activities 2 and 4 both are finished. So therefore here it will come 13, and then you will add this duration in this 13 week, you will get 19 number here. Are you clear about this 13 and 19 for activity 5? Yes, ma'am. बेटे अब फिर आप ये करें कि आप एक्टिविटी 6, 7 और 8 इन तीनों को करें. अब सो ये 2 मैंने आपको करवा दी एक्टिविटीज. सो नाउ यू डू एक्टिविटी 6, 7 and 8 विद द सेम लॉजिक. बताएं मुझे इनके क्या नंबर्स आ रहे हैं, स्टार्टअप और फिनिशिंग नंबर्स क्या आ रहे हैं. बेटे एक्टिविटी 6, 7 और 8 के नंबर्स आपने मुझे बताने हैं. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स. 6 का बताइए अगर किसी ने कर लिया तो. एक्टिविटी 6 का मैम 19 एक्टिविटी 6 का स्टार्ट टाइम क्या होगा? नो, रॉन्ग. एक्टिविटी 6 और 15. मैम 19 ठीक. हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया, सही है, सही, वेरी राइट, ठीक हो गया. एक्टिविटी 6 का स्टार्टअप टाइम 6 है, बिकॉज ये एक्टिविटी 3 से 6 वीक्स यहाँ से आ रहे हैं आपके. ठीक हो गया, और एंड टाइम उसमें 6 में आपने 9 को ऐड किया, यू गेट 15, वेरी राइट. और 7 के क्या आ रहे हैं जी नंबर्स?
ठीक हो गया। और 8 के वेरी राइट। अब एक्टिविटी 6, 7 और 8 के बाद जिन लोगों ने ये कर लिया काइंडली ये जो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटीज हैं 9, 10 इनको करिए और फिर 11 को करिए। 9 और 10 के बाद 11 सीक्वेंस में चलते जाइए। सिक्स, 7, 8 के नंबर्स मैंने अपने भी शेयर कर दिए आपसे। नाउ डू इट फॉर एक्टिविटी 9, 10 एंड 11। 12 और 13 बाद में करिएगा। 9, 10 और 11 ये पहले करिए। एक्टिविटी 9 का स्टार्ट और फिनिश टाइम क्या होगा? 10 and 7. वेल डन, ठीक हो गया। एंड देन एक्टिविटी 10 17:20. वेरी गुड, वेल डन। एंड अबाउट एक्टिविटी 11 इसका स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए? 23:29. 23:29. वेल डन ये जी, ये आ गया, वेरी गुड। अब नीचे आ जाएं, एक्टिविटी 12 और 13 को सॉल्व करें एंड देन लेट मी नो अबाउट एक्टिविटी 14 कि उसका स्टार्ट टाइम क्या होगा। 12 और 13 करिए अब। एक्टिविटी 12 का क्या है जी? 8 and 12. 8 और 12. ओके दैट्स फाइन। 13 के क्या है नंबर्स? 12 and 22. मैम 12 and 22. 12, 22. वेल डन, वेल डन। एक्टिविटी 14 के नंबर्स बताइए प्लीज। मैम 29, 29. ओके वेल डन। अच्छा जी, ये यहाँ तक अब सारे क्लियर हैं अप टू एक्टिविटी 14। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टू आस्क नाउ। अभी हमने ये क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। फॉरवर्ड पास जो था वो इस पर अप्लाई कर लिया। वो प्रोसेस फॉरवर्ड पास का वो हमने वी हैव अप्लाइड दैट फॉरवर्ड पास प्रोसेस। एनी क्वेश्चंस सो फार? अच्छा जी, कोई रेज नहीं करे सो आई विल गो नेक्स्ट। अच्छा, अब जिस तरह हमने ये फॉरवर्ड पास किया है, नेक्स्ट प्रोसेस विल बी अप्लाइंग इज कॉल्ड बैकवर्ड पास। सो जैसे यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द लेट डेट्स, मींस अब आपने जो प्रोसेस फॉरवर्ड में किया था उसको रिवर्स ऑर्डर में आपने करना है। वो कैसे है? फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का अब एंड जो ड्यूरेशन है या एंड कब होगा? आफ्टर 29 वीक्स। ये आपने इसकी फॉरवर्ड में टाइमलाइन आइडेंटिफाई की कि 29 वीक्स पर ये एंड हो जाएगा प्रोजेक्ट। अब आपने बेसिकली इसी सारे प्रोसीजर को इन रिवर्स ऑर्डर करना है आइडेंटिफाई, ठीक है? सो व्हाट डज इट मीन? अब अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलें तो एक्टिविटी 14 का बेसिकली यही जो ये 0 इसका ड्यूरेशन लिखा है ना, बेसिकली इसी के नीचे आपने एक नंबर इनपुट करना है विच विल बी कमिंग फ्रॉम हियर। या ये जो फिनिश टाइम है ना इसका प्रोजेक्ट का, वो फिनिश टाइम बेसिकली अब यूं समझ लीजिए जैसे रिवर्स ऑर्डर में वो स्टार्ट टाइम बन जाता है।
एक्चुअली वो नहीं है स्टार्ट टाइम, रियलिटी में वो स्टार्ट टाइम नहीं है, बट हमने क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में वही सेम लॉजिक को अप्लाई करके चलना है, लेकिन है नहीं वो इन एग्जीक्यूशन, इन रियलिटी वो लॉजिक नहीं है, बट दिस इज द मेथड, दिस इज द वे टू कैलकुलेट दीज नंबर्स। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट का फिनिश टाइम आ गया लास्ट एक्टिविटी का, ये वाला सेम नंबर, ये जो भी है, ये 29 हो, 30 हो, 31, 32, कुछ भी ये नंबर है, ये नंबर एज इट इज विल टेक अप हियर, हम यहाँ पर लेकर आएंगे एंड विल कॉल इट, बेसिकली आप इसको रिवर्स ऑर्डर में ये कह सकते हैं कि ये अब प्रोजेक्ट का स्टार्ट टाइम ये है, मतलब इन रिवर्स ऑर्डर प्रोजेक्ट विल स्टार्ट एट 29th वीक। तो यू विल पुट दिस 29 नंबर हियर, ठीक है, और 29 नंबर में से इस जीरो को, ये जो भी ड्यूरेशन है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले क्या करते थे, ये जो ड्यूरेशन था इसको ऐड करते थे, अब उसके रिवर्स ऑर्डर में ये सारा प्रोसीजर करना है, अब ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करना है आपने ड्यूरेशन को, ठीक है। तो ये किस तरह से हमने किया, यही वाला ऊपर वाला 29 नंबर हम यहाँ लेके आए, ठीक है, बॉटम पे ये इन अ वे कह लीजिए कि ये स्टार्ट टाइम बन गया, हालांकि है नहीं, बट जस्ट कॉल इट कि अब ये रिवर्स ऑर्डर में ये स्टार्ट टाइम बन गया, लेकिन क्योंकि सारी रिवर्स ऑर्डर में अब चीजें कर रहे हैं आप, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस ड्यूरेशन, नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट दिस ड्यूरेशन। तो अब क्योंकि वो ड्यूरेशन ही जीरो है, इसलिए ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आंसर तो सेम ही आ रहा है, 29 वीक्स आ रहा है, ठीक है। ओके अब यहाँ पर ये 29 वीक्स आ गया, तो 14 से पहले अब ये जो दो इसकी एक्टिविटीज आ गई 11 एंड 13। तो बेसिकली अगर 11 की बात करें पहले, तो फ्रॉम 14th एक्टिविटी इफ यू गो टू द 11, तो यहाँ पर आपके पास इन रिवर्स ऑर्डर स्टार्ट नंबर क्या होना चाहिए एक्टिविटी 11 का, जो कि ये 6 नीचे लिखा जाएगा इसके ड्यूरेशन के नीचे, जहाँ पे मेरा कर्सर है। एक्टिविटी 11 का रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए, अब वो एक्टिविटी 14 से आपने पिक करना है ना, वो नंबर 29 में 29, बिल्कुल ठीक है। और इस 29 में से ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट करके आप 11 जो एक्टिविटी टाइटल है उसके नीचे लिख देना, तो क्या आना चाहिए वो 23। ठीक हो गया। बस इसी लॉजिक से अब आपने आगे चलते जाना है। अब एक्टिविटी फॉर इंस्टेंस 13 का ये एक नंबर तो शो हो गया यहाँ पे, 13 का करिए, 13 का एक नंबर 29 है, दूसरा क्या आएगा, बेटे ओके ये देखें जी यही आ रहा है। अब इसी तरह ये रिवर्स ऑर्डर में आप चलिए, बाकी एक्टिविटीज के भी ये ड्यूरेशंस निकालें। एक्टिविटी 10 का कर लीजिए, 5 एंड 10, बल्कि 5 एंड 10 बोथ, इन दोनों को करिए। किसी ने किया है 5 और 10 का, 10 का क्या है, पहले आप मुझे ये वाला पहला नंबर ये वाला बताइए, ये जो 6 के नीचे आएगा, मतलब इन अ वे जो अब रिवर्स ऑर्डर हमारा, ओके 23 में अच्छा ये देखें यही आ रहे हैं जी ये नंबर्स, एक्टिविटी 5 और 10 के 23 एंड 17, ओके वेल डन। नेक्स्ट आप करिए एक्टिविटी नीचे से आ जाए, अगर एक्टिविटी 12 का कर लें, 9 और 12 इन दोनों का कर लें। ठीक है ठीक है, अब यहाँ से आपको जो आ, ओके जो मुश्किल आएगी या क्वेश्चन है वो ये है एक्टिविटी 4 और 2 के बारे में, एंड देन अबाउट एक्टिविटी 3, बाकी सिंपल है, बाकी सारे करिए जरा। सबका ये ड्यूरेशन स्टार्ट मतलब रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट एंड फिनिश टाइम निकालिए प्लीज। अच्छा जी ये एक्टिविटी 4 एंड 2 इनका ड्यूरेशन कैसे लेंगे, ये तो
एक्टिविटी 4 का बताइए जी। ओके, एंड एक्टिविटी 2 का ठीक होगा, ठीक होगा, वेल डन। अभी नीचे आ जाए जनाब, एक्टिविटी 12 है और 9 है, इनके देखिए। ये आ गए जी। एक्टिविटी 6 के भी आपके यही आ रहे हैं। मैंने उसको मुंह ही देखा संडा फास्ट 2 साल है तो कुर्बानी लगी। एक्टिविटी 7 के बताइए ड्यूरेशंस। हमजा तू आप बुलाना ले ला कैसी ठीक है लेकिन मेरी बात सुन दावा नहीं है। एक्टिविटी 12 के कैलकुलेट करिए। दे भाई आगे रात ये मक्खी से उसी का नहीं एंड एक्टिविटी 8। Okay, well done. Now the only thing left is activity 3. अब activity 3 में आपको लॉजिक को रिवर्स ऑर्डर में ही रखना है ना। तो जैसे फॉरवर्ड पास में आप जितने भी गिवन नंबर होते थे उनमें से लार्जर वन नंबर लेते थे ना। जैसे अगर फॉरवर्ड पास में जा रहे होते तो ये 8, 6 और 13 में से आप लार्जेस्ट नंबर को पिक करते। इसी तरह बैकवर्ड पास में स्मॉलेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? मैम 6 और 0। बेटे ये माइक आ रहा है आपकी तरफ। बेटे ये माइक ना क्लोज करें जिसकी तरफ ज्यादा शोर आ रहा है। उसमें सेल भी डलते हैं। ये एक्टिविटी के नंबर समझ में आ रहे हैं? माइक हो ये सब लोग अपना माइक चेक करें। अच्छा जी, ये नंबर ये क्या सिविल इंजीनियर है? लगा के चले गए। बेटे ये एक्टिविटी 3 का क्लियर है आपको या नहीं? एनी क्वेश्चन सो फार? यस मैम क्लियर है। ठीक हो गया, चलें। अब आपने क्या करना है? अब हमने इसका बेसिकली फ्लोट टाइम निकालना है। वो किस तरह से करना है हमने? सो बेसिकली फ्लोट टाइम के लिए इफ यू कम टू दिस एक्टिविटी 1, अब ये देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। हियर सेंटर में आपने एक नंबर लिखना है जो कि बेसिकली फ्लोट टाइम का नंबर है। दैट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। ये जो आपका 1 के ऊपर 2 नंबर है ना, 0 एंड 5, और 2 के ऊपर 2 नंबर हैं 2 एंड 7, ठीक है। सो 1 पे नंबर 5 एंड 0 का डिफरेंस क्या है? दैट इज 5, ओके। सिमिलरली 7 एंड 2, their difference is again number 5, ठीक है। So you will write this 5 inside this this box, and this is the float time for activity 1. ये 5 नंबर कैसे आ रहा है? Are you getting this point? ये जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट और फिनिश टाइम आपने निकाले थे, इन दो नंबर्स का ये डिफरेंस है। 5 minus 0 is 5, 7 minus 2 is 5. तो ये just see this number here will be 5, और उस नंबर की लॉजिक क्या है कि चाहे 5 minus 0 करें चाहे 7 minus 2 करें, आंसर सेम आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर तो सेम आ रहा है, that means you have done
and applied this procedure rightly. अगर वो number same नहीं आता तो आपने ये procedure गलत apply किया. तो activity 1 का 5 आ गया, ठीक है. You do calculate about activity 2 and 3. उनके साथ calculate करके मुझे बताएं flow times क्या आ रहे हैं. Are you getting my point? Activity 2 का क्या आना चाहिए? Flow time क्या होना चाहिए इसका? 4 मैम. That's it. And activity 3? 0. 0 मैम. अब इसी लॉजिक से ये सारी एक्टिविटीज के फ्लो टाइम्स कैलकुलेट करिए. और जिन एक्टिविटीज का फ्लो टाइम 0 आ रहा है उनको शेडेड करके वो एक्टिविटीज मुझे बताइए. वो सारी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज which are having the 0 flow time. Have you identified your critical activities? Yes, ma'am. क्या है जी? मैम एक्टिविटी 3, 7, 9, 10, 11 और 14 क्रिटिकल एक्टिविटीज इनका 0 आ रहा है. Well done. This is how it is. Shaded in red is the critical activities, and all these activities connecting them is called critical path. So this is the critical path of this network. This activity 3, 7, 9, 10, 11 and 14 means you do not afford any delay in executing these activities. In case you do delay these activities, your whole project will have an impact and your whole project will be delayed for that much time. Are you clear about it? सबको समझ आ गया ये critical path हमने कैसे identify किया इस network का? So being project manager will be extraordinarily conscious about the execution plan of these activities. हम इनके ऊपर किसी तरह का delay afford नहीं करेंगे. हम इसके ऊपर conscious रहेंगे कि ये अपने time पे start हो activities, अपने time पे end हो, so that our project should end up at the asked date or at the given deadline. Clear up to here? Anyone having any questions? If no questions, I'll go ahead. All right, doesn't seem any question. So now please practice this example. Note down these activities. ये तीनों columns को note down कर लिए. Activity title, predecessor and duration. और इसकी node network diagram बनाने के बाद kindly find the critical path of this network. बेटा ये आप लोगों ने करना है, करके मेरे साथ पिक्चर शेयर करें. पहले तो नेटवर्क ड्रॉ करके पिक्चर शेयर करें.
बेटे ये ड्रॉ किया है नेटवर्क? आर यू विद मी? यस मैम, हो गया। ओके ओके, वेल डन वेल डन। नेटवर्क डायग्राम ओके शेयर कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो लुक्स राइट। ठीक है बेटे, थैंक यू। अब इसमें ये क्रिटिकल पाथ इसका फाइंड करें नेटवर्क का। ठीक हो गया बेटे, नेटवर्क ठीक है। अब इसकी क्रिटिकल पाथ को फाइंड करें। हाँ जी, सो काइंडली मैच योर सॉल्यूशन विद माइन। एक ही चीज इसमें आपकी ठीक नहीं होगी। आई होप ये लास्ट एक्टिविटी आपकी हमजा का सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा ओके ओके दैट्स फाइन, ठीक है। ठीक हो गया यही है जी, मैच योर सॉल्यूशंस विद दिस वन। ठीक लग रहे हैं आप लोगों के सबके? यही आ रहा है क्रिटिकल पाथ आप लोग जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया? ओके ओके वेल डन हो गया, ठीक होगा। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है वो कर लें एंड दैट्स इट।
हाँ जी, अब जिन लोगों ने वो पहला क्वेश्चन कर लिया, नाउ प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन कर देना, इस तरह पता नहीं चल रहा। ब्लैक्स, अच्छा ब्लैक्स सही है। मुबीन, आपका कौन सा क्रिटिकल पाथ? अच्छा, सही है, ठीक हो गया। चलें, लेट मी शेयर विद यू दिस सॉल्यूशन। हाँ जी, यही सॉल्यूशन आ रहा है आपका ACFHI। Have you got the same solution, all of you? Critical Yes, path ma'am. Okay, well done. So this was it for today. यही था जी आज का काम। आज का अब एक लेक्चर हमारा रह गया आफ्टर ईद। हाँ जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार? एनी ऑफ यू गर्ल्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है? बेटे आप लोगों ने किया है किसी ने या नहीं? सॉल्यूशन आ रहा है जो शेयर किया हुआ है, मैच करें जरा अपना सॉल्यूशन से। बेटे कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं, वरना ये मैं अटेंडेंस शीट लोड कर दी है। आई हैव टू गो, नहीं तो थोड़ी देर होल्ड करें। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चंस है जिसको समझ नहीं आया, यू कैन स्टे। मैं अभी आके आपसे रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। गिव मी अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल। Okay, so if you have got any questions, please to ask now. Otherwise, you may leave now. Attendance sheet को मैंने शेयर कर दिया। क्वेश्चन किसी का है कोई तो यू मे आस्क नाउ, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी, इफ यू हैव गॉट नो क्वेश्चंस तो मैं भी इस क्लास को एंड कर दूं।